FDP on seminar, Professor Harendra Singh Sir. We are indeed privileged to have great educationalist, peacemaker as our guest and eminent speaker in this FDP. Sir is a renowned personality in the field of education. Currently, Professor Harendra Singh Sir is working as Professor and Principal, DPM, Institute of Education, Baisuma, Meerut, Chaudhary Charan Singh University, Meerut. Professor Harendra Singh holds the qualification of D.Litt in Education, PhD in Education, MPhil, Master of Degrees in Economics, Psychology, Hindi, Political Science, Education, Law, Management and Administration, Journalism and Mass Communication, Post-Advanced Diploma in Russian and Postgraduate Diploma in Rural Management. Professor Sir, having more than 24 years experience in teaching, administrative and research. Sir has guided more than 92 research scholars for their research degree. More than 181 papers presented in seminars, conferences and workshops at international and national level. Professor Harendra Singh Sir has attended more than 263 workshops, training centers and conferences. Sir also contributed 70 research papers and articles in various international and national level research journals, 21 books as author, co-author, and 14 chapters in edited books are into his credit. Professor Harendra Singh Sir is the Chief Executive Editor of 8 research journals, in which 3 are international and 5 are national repute. Sir have been part of Academic Leadership Development Program under LEP-MHRD, training program on academic leadership at Said Business School, University of Oxford, UK, Britain, NIEPA, New Delhi, and training program on academic leadership at MGAHV, Wardha, under PMMNMTT, MHRD, Government of India. Professor Harendra Singh Sir has visited United Kingdom, Singapore, Sri Lanka, Thailand, and Nepal for educational purpose. Sir has been appointed as a fellow of a Directorate International Relay NC USA. Professor Harendra Singh is well-known media personality. Sir has appeared TV Talk on National Channel, DD News, on Guru Shishya Parampara on the occasion of Teachers' Day in 2014. Sir is member of various professional and academic bodies such as VTE, member of NCTE, chairperson of National Educationist Council, member of World Peace Movement Trust, Akshara Foundation of India, member of Evaluation Committee IAO, USA, Peace Ambassador of Gandhi Peace Foundation, Nepal, and Executive Alumni University of Oxford, UK, etc. Professor Harendra Singh Sir has been honored and nominated for 16 awards for meritorious and commendable contributions as eminent personality in education. In 2006, Sir got Lifetime Education Leadership Award, Outstanding Contribution to the Educational Leadership. In 2007, Sir got Shiksha Bharati Award, Education Excellence Award,
राष्ट्रीय ज्ञान ज्योति पुरस्कार एंड राष्ट्रीय विद्या सरस्वती पुरस्कार, Jewel of India Award for outstanding contribution to the excellence of education. In 2007, Rashtriya Gaurav Award for contribution education in education and society. In 2008, Eminent Educationist Award for outstanding achievement in education in 2008. Lifetime Education Achievement Award for outstanding contribution to the excellence of education. In 2008, Man of the Year Award NC USA for commendable contribution in education. In 2008, World Medal of Freedom Gold Medal Award NC USA for contribution to the excellence of education. In 2010, Certificate of Honor for B.Ed teaching. In 2013, Sargot Dronacharya Award for outstanding and exemplary contribution in the field of education and nation building. In 2017, AARC Outstanding Educationist Award for Higher Education, Research and Teacher Education. Professor Haran Singh Sir has been conferred Shikshak Shri Samman in 2014 by the government of Uttar Pradesh for outstanding contribution in the field of higher education. Presently, Sir is participating academic leadership development program in Oxford University, London, under leadership for academician program MHRD. MHRD has selected 22 top academicians from the country, and Sir is one of them. Sir is going to provide with us an overview of the topic of innovative skills for online teaching. We rarely get this kind of an opportunity to listen to the words of great personality like Professor Haran Singh Sir, the man of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, an ideal of knowledge and experience, an inspiration to all of us. It's our proud privilege to have you as a guest of honor, sir. Now, I would like to request Professor Haran Singh Sir to address the viewers. I welcome you, sir. Please join, sir. आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गंगादास जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गंगादास जी। आपने मेरा इतना लंबा चौड़ा परिचय दिया, तो मैं इस लायक तो नहीं कि इतना लंबा चौड़ा आप मेरा परिचय दें। मैं तो आपके बीच का ही हूं और मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने किया शिक्षा के क्षेत्र में वो सब आप लोगों का है, मेरा कुछ नहीं है। और जहां तक बात करें हम आज के टॉपिक की, तो मुझे बताया गया था कि मुझे गांधी जी की नई तालीम और अनुभव जन्य शिक्षा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बात करनी है आप लोगों के बीच। इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं और आप सभी को प्रणाम भी करता हूं। और मेरे लिए आज एक बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि मैं एक ऐसे संस्थान में अपना थोड़ा ज्ञान आप लोगों के बीच बांटूंगा कि जहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी मेरे शिष्य रहे हैं। डॉक्टर गंगादास जी ने भी मेरे अंडर में ही पीएचडी की है, और इस संस्थान के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर फरमान जी, उन्होंने भी मेरे अंडर में ही पीएचडी की है। तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की है। कोई भी शिक्षक तब बहुत ज्यादा खुश होता है जब उसके शिष्य तरक्की करते हैं और अपना नाम आगे करते हैं। और मेरे दोनों शिष्य आज इस स्थिति में हैं कि उन्होंने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर संजय देशवाल जी जो प्राचार्य हैं इस महाविद्यालय के, वो भी मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं। ये सब मेरा परिवार है। और आज मैं अपने परिवार के बीच जो मैं बात करने जा रहा हूं, जिस पर मुझे आप लोगों ने आदेश दिया है, उसके संदर्भ में जो छोटा मोटा मेरा ज्ञान है वो मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। जो गांधी जी की नई तालीम है, ये एक तरह से एक शिक्षा पद्धति है। जब प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था, वो समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से समुन्नत और बहुत उत्कृष्ट थी। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ह्रास हो गया।
विदेशियों ने यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था को उसे उस अनुपात में विकसित नहीं किया जिस अनुपात में उसे विकसित किया जाना चाहिए था। अपने संक्रमण काल के दौर में जो भारतीय शिक्षा थी उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और 1850 तक भारत में जो गुरुकुल की प्रथा चलती आ रही थी उसे मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के संक्रमण के कारण भारत की प्राचीन व्यवस्था का अंत हो गया और भारत में बहुत सारे गुरुकुल तोड़ दिए गए और उनके स्थान पर कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल खोले जाने लगे। महात्मा गांधी जी जो हमारे देश की आजादी के महत्वपूर्ण स्तंभ थे और आजादी के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने इन अंग्रेजों द्वारा विकसित की गई शिक्षा पद्धति की वो 3 महत्वपूर्ण कमियां देखी और उन्होंने कहा कि पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि ये विदेशी संस्कृति पर आधारित शिक्षा थी। दूसरी बात उन्होंने कही एक हृदय और हाथ की संस्कृति की उपेक्षा कर दिया गया था इसमें और इसे केवल दिमाग तक ही सीमित कर दिया गया था। और तीसरी बात ये कही कि विदेशी भाषा के माध्यम से हम लोगों को सही शिक्षा संभव नहीं हो सकती। तो गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा को मानसिक गुलामी का कारण बताया जिससे भारतीय ग्रसित हो रहे थे। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा लेकर हम अपने राष्ट्र को गुलाम बना रहे हैं, हमें जो शिक्षा है वो नहीं मिल पा रही है। तो जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बड़ा आदर्शवादी रहा है। उनका जो आचरण था वो प्रयोजनवादी विचारधारा से उत्प्रोत था और संसार के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीति और समाज सुधारक के रूप में भी देखते हैं। पर उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो उनका मूल मंत्र था वो था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। इसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव नहीं हो सकता। अतः गांधी जी ने जो शिक्षा के उद्देश्यों और सिद्धांतों की व्याख्या की और नई तालीम योजना जो है उनके शिक्षा दर्शन का ही एक मूल रूप है। इसलिए उनका शिक्षा दर्शन उनको एक शिक्षा शास्त्री के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करता है। उनका शिक्षा के प्रति जो योगदान था वो बड़ा अद्वितीय था। उनका मानना था कि भारत में बच्चों को 3H की शिक्षा देनी चाहिए। 3H से उनका मतलब था हेड, हैंड और हार्ट। वो चाहते थे कि दिमाग के साथ साथ हस्त कौशल की शिक्षा हो और वो दिल से दी जाए, वो शिक्षा दी जाए। वो शिक्षा चाहते थे जो छात्रों को स्वावलंबी बनाए और देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सके। तो जो गांधी जी की नई तालीम का दर्शन था वो संपूर्ण मानव समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम है। जो गांधी जी की देन है उसमें बुनियादी शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और वो बहुत बहुमूल्य भी है। इसको जो ये इनकी नई तालीम थी इसे हम वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये वर्धा के सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। इसे बुनियादी तालीम का नाम भी देते हैं, बेसिक शिक्षा भी कहते हैं इसको और नई तालीम भी कहा जाता है। कई सारे नामों से इसे जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को इस नई तालीम की योजना बनाई थी जिसे राष्ट्रव्यापी और व्यावहारिक रूप दिया जाना था। इस नई तालीम के तहत ही ये बुनियादी शिक्षा को देश के गांव-गांव में पहुंचाने की उनकी योजना थी। यह सर्वोत्तम कल्याणकारी शिक्षा प्रणाली का राष्ट्रीय स्तर पर समुचित प्रयोग नहीं हो पाया, यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई, इसलिए इसके मुख्यतः परिणाम जो हम लोगों के बीच आने चाहिए थे वो भी नहीं आ पाए। ये जो वर्धा योजना है या जिसे बेसिक शिक्षा या बुनियादी तालीम भी कहते हैं, ये अपने ढंग की एक शिक्षा विधि है। गांधी जी ने देश की उस स्थिति को देखते हुए जो तत्कालीन स्थिति थी उसमें हाथ के काम को प्रधानता देने की बात कही। उनका विश्वास यह था कि जब तक छात्र अपने हाथ से काम नहीं करते तब तक उन्हें श्रम का महत्व नहीं आ सकता। वो जान ही नहीं पाएंगे कि श्रम क्या होता है और क्यों करना चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी और निष्क्रिय बना देता है क्योंकि जब हम सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और व्यावहारिकता में वो नहीं होता तो एक अहम की तुष्टि हमारा मन करता है और हम अहंकारी बन जाते हैं और उसके फलस्वरूप हम निष्क्रिय होने लगते हैं। इसलिए बच्चों को आरंभ से ही किसी ना किसी हस्त कौशल के द्वारा हम लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उस समय हमारे देश में कृषि और कताई बुनाई ये 2 बुनियादी धंधे थे जिनमें देश की 3/4 जनता लगी हुई थी। इसलिए उन्होंने दोनों को ही मूल हस्त कौशल मानकर शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जो उन्होंने बेसिक शिक्षा की विशेषताएं बताई थी वो पहली बताई थी कि हमारी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि हमारी शिक्षा को हस्त कौशल युक्त होनी चाहिए और अनुभवजन्य होनी चाहिए, अनुभव के आधार पर होनी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि प्रत्येक बालक को 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे सभी लोग शिक्षित हो सकें, साक्षर हो सकें,
तो 14 साल तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, अर्थात उनका कहना मतलब ये था, उनके कहने का आशय ये था कि कम से कम शिक्षा ऐसी हो कि उसके अध्यापकों का वेतन जो छात्र काम करते हैं उसके बनाए हुए कामों से ही वो वेतन निकल आए। जो वो हस्तशिल्प का प्रयोग करते हैं, जो अनुभवजन्य शिक्षा का प्रयोग करते हैं, जिसका वो उत्पादन करते हैं, उनको बेचकर कम से कम इतनी धनराशि आ जाए कि जो शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं उनका वेतन उससे निकल सके। ये लेकिन उनका जो ये लास्ट वाला सिद्धांत था कि जिससे शिक्षकों का वेतन निकल सके, अध्यापकों का वेतन निकल सके, इस पर बड़ा विरोध हुआ और इसका विरोध होने के कारण बाद में इस सिद्धांत को इस बेसिक शिक्षा से हटा दिया गया। महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, मेरे सपनों का भारत। उस पुस्तक में उन्होंने अपनी नई तालीम की अवधारणा देते हुए बताया था, उन्होंने कहा था कि अन्य देशों के बारे में कुछ भी सही हो, लेकिन कम से कम भारत में तो जहां 80% आबादी खेती करती है और दूसरी 10% उद्योगों में काम करने वाली है, शिक्षा को केवल साहित्यिक बना देने और लड़कों और लड़कियों को उत्तर जीवन में हाथ के काम के लिए अयोग्य बना देना एक गुनाह है। उनकी राय थी कि चूंकि हमारा अधिकांश समय अपनी रोजी कमाने में लगता है, इसलिए हमारे बच्चों को बचपन से ही ऐसे परिश्रम का गौरव सिखाना चाहिए। हमारे बालकों की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिससे वो मेहनत का तिरस्कार ना करें। कोई कारण नहीं है कि एक किसान का बेटा किसी स्कूल में जाने के बाद खेती के मजदूर के रूप में आजकल की तरह निकम्मा बन जाए। यह अफसोस की बात है कि हमारी पाठशालाओं के लड़के शारीरिक श्रम को तिरस्कार की दृष्टि से चाहे ना देखते हो, पर नापसंदगी की नजर से जरूर देखते हैं। उन्होंने आगे इसमें लिखा, अपने मेरे सपनों के भारत पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि मेरी राय में तो इस देश में जहां लाखों आदमी भूखों मरते हैं, वहां बुद्धिपूर्वक किया जाने वाला श्रम ही सच्ची प्राथमिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा है। वो आगे लिख रहे हैं इसमें कि अक्षर ज्ञान हाथ की शिक्षा के बाद आना चाहिए। उनका मानना यह था कि हम अक्षर ज्ञान जो लेते हैं उससे पहले हमें अपना हस्तशिल्प के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उस अनुभवजन्य शिक्षा के आधार पर ही हम अक्षर ज्ञान लें। और हाथ के काम करने की जो क्षमता है वो ही वो चीज है जो मनुष्य को उसको पशु होने से अलग करती है। लिखना पढ़ना जाने बिना मनुष्य का पूरा विकास नहीं हो सकता, ऐसा मानना एक वहम है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि अक्षर ज्ञान से जीवन का सौंदर्य बढ़ जाता है, लेकिन यह बात गलत है कि उसके बिना मनुष्य का नैतिक, शारीरिक और आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता। वो आगे लिखते हैं कि मेरा मत है कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा हाथ, पैर, आंख, कान, नाक आदि शरीर के अंगों के ठीक अभ्यास और शिक्षण से हो सकती है। दूसरे शब्दों में, इंद्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से बालक की बुद्धि के विकास का उत्तम और शीघ्रतम मार्ग मिलता है, परंतु जब तक मस्तिष्क और शरीर का विकास साथ साथ ना हो और उसी प्रमाण में आत्मा की जागृति ना होती रहे, तब तक केवल बुद्धि का एकांगी विकास से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। गांधी जी की जो नई तालीम थी उसमें वो आध्यात्मिक शिक्षा की बात भी करते हैं। उसमें कहते हैं कि इसका जो आध्यात्मिक शिक्षा की उन्होंने बात की वो उसे हृदय की तालीम बताते थे। इसलिए मस्तिष्क का ठीक और चहुर्मुखी विकास तभी हो सकता है जब बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की तालीम के साथ साथ ये होता रहे। ये सब बातें एक अविभाज्य बात है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार ये मान बैठना बिल्कुल गलत होगा कि जिनका विश्वास टुकड़े टुकड़े करके या एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। इसलिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है नई तालीम की, वो उस आधार पर होनी चाहिए कि हम जो भी सीखें वो करके सीखें, अनुभव के आधार पर सीखें। शरीर, मन और आत्मा की जो विविध शक्तियों में ठीक ठीक सहकार और सुमेल ना होने के कारण दुष्परिणाम आते हैं वो हमारे चारों ओर विद्यमान है। इतना अवश्य है कि वर्तमान विकृत संस्कारों के कारण वो हमको दिखाई नहीं देते। शरीर, मन और आत्मा में विभिन्न जो विकार आते हैं उनको दूर करने के लिए शिक्षा का हस्तशिल्प से जोड़ा जाना बहुत जरूरी उन्होंने माना। उन्होंने अपने आलेखों में लिखा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक की या प्रौढ़ के शरीर की, मन और आत्मा की उत्तम क्षमताओं को उद्घाटित किया जाए और बाहर प्रकाश में लाया जाए। अक्षर ज्ञान ना तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है और ना उसका आरंभ। वो तो मनुष्य की शिक्षा के कई साधनों में से केवल एक साधन है। अक्षर ज्ञान अपने आप में शिक्षा नहीं है। इसलिए गांधी जी बच्चे की शिक्षा का श्री गणेश उसे कई उपयोगी दस्तकारी सिखाकर और जिस क्षण से वो अपनी शिक्षा का आरंभ करता है उसी क्षण से उसे उत्पादन के योग्य बनाकर करना चाहते थे।
उनका मानना था कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में जो मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास है वो संभव है। हालांकि प्रत्येक दस्तकारी आजकल की तरह निरे यांत्रिक ढंग से ना सिखाकर वैज्ञानिक तरीके पर सिखानी पड़ेगी, अर्थात बालक को क्रिया का क्यों और कैसे बताना होगा, ऐसा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने यह कहा था कि शिक्षा की मेरी योजना में हाथ अक्षर लिखना सीखने से पहले औजार चलाना सीखेंगे, आंखें जिस तरह दूसरी चीजों को तस्वीरों के रूप में देखती हैं और उन्हें पहचानना सीखती हैं, उसी तरह से अक्षरों और शब्दों को तस्वीरों की तरह देखकर उन्हें पढ़ना सीखेंगी। तो यहां उनका कहने का आशय यह है कि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि कान जो है वो चीजों के नाम और वाक्यों का आशय पकड़ना तभी सीख पाएंगे जब हम उनका अनुभव में लेंगे। उनकी गरज यह थी कि सारी जितनी भी तालीम है वो स्वाभाविक होनी चाहिए, बालकों के ऊपर उसे लादा नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो उसमें अपने आप दिलचस्पी लें। इसलिए यह तालीम दुनिया की दूसरी तमाम शिक्षा पद्धतियों से जल्दी फल देने वाली और सस्ती मानी गई। जो हाथ का काम था, जो हस्तशिल्प था, वो इस योजना का केंद्र बिंदु था। हाथ की तालीम का मतलब यह नहीं था कि विद्यार्थी पाठशाला का जो संग्रहालय है उसमें रखने लायक वस्तुएं, ऐसे खिलौने बनाए जिसका कोई मूल्य ना हो। गांधी जी ये चाहते थे कि उन्हें ऐसी वस्तु बनाना चाहिए जो बाजार में बेची जा सके। कारखानों के प्रारंभिक काल में जिस तरह बच्चे मार के भय से काम करते थे, उस तरह वो बच्चों से काम कराना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि बच्चे स्वयं अपने अनुभव से सीखें और अपने मन से काम करें, अपने हृदय से और दिल से काम करें, और तब वो किसी चीज का निर्माण करें। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में लिखा है कि मैं भारत के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत में दृढ़तापूर्वक विश्वास रखता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि इस लक्ष्य को पाने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि हम बच्चों को कोई उपयोगी उद्योग सिखाएं और उनके द्वारा उनकी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास सिद्ध करें। ऐसा किया जाए तो हमारे गांवों के लगातार बढ़ रहे नाश की प्रतिक्रिया रुकेगी और ऐसा न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था की नींव पड़ेगी जिसमें अमीरों और गरीबों के अस्वाभाविक विभेद की गुंजाइश नहीं होगी और हर एक को जीवन मजदूरी और स्वतंत्रता के अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकेगा। उटाई और कताई आदि गांवों में चलने योग्य हाथ के ऐसे उद्योगों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा की मेरी योजना की कल्पना चुपचाप चलने वाली ऐसी सामाजिक क्रांति के रूप में की गई है जिसके अत्यंत दूरगामी परिणाम होंगे। वह शहरों और गांवों में स्वस्थ और नैतिक संबंधों की स्थापना के लिए सुदृढ़ आधार पेश करेगी और इस तरह से मौजूदा सामाजिक जो आरक्षितता है और वर्गों के पारस्परिक संबंधों की जो मौजूदा कटुता है, उनकी बुराइयों को बड़ी हद तक दूर करेगी। ऐसा गांधी जी ने अपने जो लेख लिखे हैं उन्होंने कहा है। जो गांधी जी थे वो सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते थे। बच्चों और इंसानों के शरीर और आत्मा के सर्वोत्तम की अभिव्यक्ति वो मानते थे। यहां सर्वोत्तम की अभिव्यक्ति से जो गांधी जी का तात्पर्य है वो ये है कि सच्चाई की जो आंतरिक आवाज है वो मुखर हो सके। इसके अलावा गांधी जी जो मानते थे वो ये कहते थे कि सच्ची शिक्षा वो उसको मानते थे जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती हो और प्रेरित करती हो। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो उनके मुताबिक शिक्षा थी उसका अर्थ ये था कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। जो उन्होंने नई तालीम की शिक्षा के बारे में सिद्धांत दिया, उसका उद्देश्य जो था वो शिक्षा की धारणा के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था तात्कालिक उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य था अंतिम। जो तात्कालिक उद्देश्य था उसमें शिक्षा, जो गांधी जी की शिक्षा की धारणा थी, उसके कई उद्देश्य वो थे जो हमारे दैनिक जीवन के साथ संबंधित हैं। जीविकोपार्जन से या व्यावसायिक उद्देश्यों से गांधी जी का विश्वास यह था कि भारत जैसे गरीब देश में जहां रोजी रोटी का कमाना एक मुख्य समस्या है, शिक्षा द्वारा व्यक्ति को रोजी कमाने की योग्यता प्रदान करनी चाहिए और इसे अपने व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होना सीखना चाहिए। गांधी जी के शब्दों में जो शिक्षा के लिए बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होना चाहिए। वो कहते थे कि शिक्षा को आप ये मान के चलें कि ये बेरोजगारी के खिलाफ एक बीमा है। जैसे हम बीमा कराते हैं, कोई परेशानी आती है तो बीमे से हमको धनराशि मिलती है अपने जीवन यापन के लिए, उसी तरह वो गांधी जी का मानना यह था कि हमारी शिक्षा को हमें एक बीमा मानना चाहिए जो हमारी बेरोजगारी के विरुद्ध हो। इसका आशय यही है कि हम अपने हस्तशिल्प से ऐसा कार्य करें कि हमारे उसमें एक तरह से
हमारी जीवन पद्धति में आ जाए और हम ऐसे निर्माण कार्य करते रहें कि हम कभी भूखे ना मरे, रोजी कमाने में हम सक्षम हो सके। तो जो दूसरा उनका उद्देश्य विशेष रूप से शिक्षा का था, चरित्र पर बल देने वाला था। तो गांधी जी चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार मानते थे, इसलिए जिसने ज्ञान का भी उनका लक्ष्य था वो चरित्र का निर्माण होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और चरित्र निर्माण में केवल साहस, विश्वास की शक्ति, सच्चाई, शुद्धता, आत्मनियंत्रण, मानव सेवा आदि नैतिक गुणों का विकास भी उन्होंने सम्मिलित किया है। जो गांधी जी थे वो चरित्र के बिना और चरित्र की पवित्रता के बिना वो मनुष्य को व्यर्थ मानते थे, शिक्षा को वो व्यर्थ मानते थे कि यदि चरित्र के बिना शिक्षा दी जा रही है तो पवित्र नहीं है, वो व्यर्थ है। वो बच्चे का वो पूरा सर्वोत्तोन्मुखी विकास चाहते थे। पूर्ण विकास की शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। सर्वोत्तोन्मुखी विकास का जो अर्थ है वो बुद्धि, हृदय और हाथ का विकास है। जो 3H की बात उन्होंने कही, ये वही बुद्धि, हृदय और हाथ का विकास था। उन्होंने कहा भी है कि जैसा कि मैंने अभी पूर्व में अभी आपको बताया था कि मनुष्य ना केवल बुद्धि है, ना ही केवल पशु तुल्य शरीर है, ना वो केवल दिल है और ना ही केवल आत्मा। मानव पूर्णता के लिए सभी का उचित और संतुलित सहयोग आवश्यक है। इसी में ही शिक्षा की आर्थिकता निहित है। जब तक शिक्षा आर्थिक रूप से हमको सबल नहीं बनाती तब तक शिक्षा पूरी नहीं है। 11 सितंबर 1937 को हरिजन नामक मुखपत्र में गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा वो है जो बच्चों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक योग्यताओं को प्रेरित और विकसित करती है। गांधी जी व्यवसाय को जीवन का उद्देश्य नहीं मान सकते थे, इसलिए उन्होंने संस्कृति की ओर भी ध्यान दिया। गांधी जी के शब्दों में अगर हम कहें तो वो कहते हैं कि शिक्षा में साक्षरता की अपेक्षा सांस्कृतिक तत्वों को अधिक महत्व मैं देता हूं। संस्कृति प्रारंभिक और नई वस्तु है जिसे लड़कियों को स्कूल से प्राप्त करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से गांधी जी ने शिक्षा को, संस्कृति को शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। जो सांस्कृतिक उद्देश्य है वो भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने पर बल देता है, और संस्कृति जो हमारा पहनावा है, जो हमारा बोलने का ढंग है, जो व्यवहार है, ये सब उसको प्रतिबिंबित करते हैं। सांस्कृतिक उद्देश्य से जो युक्त शिक्षा है हमारी, तो वो मनुष्य को अहंकार, पक्षपात और प्रतिबंध से मुक्त करती है और उसे वस्तुओं को अपने वास्तविक रूप में देने की योग्यता प्रदान करती है। जो उन्होंने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बताया था वो था आत्मानुभूति शिक्षा। यही उनका और जीवन का उद्देश्य भी उन्होंने यही बताया, अंतिम उद्देश्य। आध्यात्मिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिकता प्रदान करती चाहिए। उनके अनुसार नैतिक चरित्र का विकास जो है पूर्ण मानव का विकास सभी आत्मानुभूति के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और जो वो जाके असीम में मिल जाता है। गांधी जी ये मानते थे कि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए, जिससे वो बेरोजगारी का सामना करने में हम अपने बच्चों को सक्षम बना सके। शिक्षा को इस तरीके का प्रशिक्षण प्रदान करने का माध्यम होना चाहिए ताकि भावी जीवन में वो बच्चों को अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाती हो। उनके मुताबिक 14 साल की उम्र में बच्चे को कमाने वाली इकाई के रूप में 7 सालों का कोर्स पूरा करने के बाद मुक्त कर देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा में विकल्प की तलाश की। जो उनकी नई तालीम है वो उनके इस विचार को देती थी और बुनियादी उद्देश्य को पूरा करती थी। उनका विचार था कि शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। वो बार बार इस बात को दोहराते हैं अपने वक्तव्यों में कि मनुष्य ना तो बुद्धि है, ना तो पूरी तरह शरीर से पशु है, और ना ही वो हृदय और ना ही केवल आत्मा है। वो ये मानते थे कि शरीर, बुद्धि और हृदय, इन तीनों का उचित और संतुलित योगदान जो है वो संपूर्ण और वास्तविक शिक्षा के अर्थशास्त्र का निर्माण करता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर चलता है, इसलिए वो इस बात पर बल देते थे। वो गांधी जी ये भी महसूस करते थे कि शिक्षा में जो नैतिक आग्रहों का समावेश है वो अवश्य होना चाहिए। इसके तहत उसे सभी बच्चों के चरित्र निर्माण का साधन भी बनना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने खासतौर पर बच्चों में शांति और नेतृत्व के लिए शिक्षा देने की बात भी कही है। उन्होंने यह भी महसूस किया है कि शिक्षा हमें स्वतंत्रता का एहसास कराने वाली होनी चाहिए। जो गांधी जी का तत्कालिक शिक्षा व्यवस्था से मोहभंग हो गया था, उसका बारे में उनका विचार यह था कि प्रकृति में बहुत ज्यादा साहित्यिक और किताबी बातें आ गई थी। इसके विकल्प के बतौर उन्होंने शिल्प केंद्रित शिक्षा का प्रस्ताव रखा जो अनुभव जन्य शिक्षा पर आधारित हो। इसे अनुभव के आधार पर वो जो उनकी शिल्प शिक्षा थी उससे बच्चे अनुभव करें और उससे सीखें। इसे औपचारिक तौर पर वर्धा की बुनियादी शिक्षा के रूप में पेश किया गया था, जिसे नई तालीम के नाम से जानते हैं।
भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर हम इसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, उसकी जो पृष्ठभूमि है उसमें गांधी जी की बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा तो है ही है, इससे बुनियादी प्रशिक्षण और प्राथमिक स्तर की शिक्षा के दो स्तर भी उन्होंने कहे। एक तो स्कूली बच्चे एक कक्षा एक से ही तकली से सूत काटने वाले थे, जो रुई से गुड़िया बनाकर या तो खादी भंडारों को देते थे या बैठने के आसन, रुमाल, चादर आदि बनाते थे। शिक्षा के बारे में जो गांधी जी का दृष्टिकोण था वो वस्तुतः व्यवसाय परक था। वो सैद्धांतिक रूप के साथ साथ उसको व्यावहारिक रूप में लाना चाहते थे और व्यवहार रूप में उसे व्यावसायिक रूप देना चाहते थे। मैं समझता हूं कनेक्शन आपका लॉस्ट हो गया है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गंगादास जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? मैं समझता हूं कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। नहीं, वो मित्रों थोड़ा सा विलंब हो रहा है। जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अभी थोड़ा सा कनेक्शन लाइट की वजह से लॉस्ट हो गया है, दोबारा से हम लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गंगादास जी, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। बीच में आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा से इसको किया है। वी हैव रीजॉइंड सर। जी 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 जी, चलिए। तो मैं बात कर रहा था कि जो बुनियादी शिक्षा की उन्होंने कल्पना की थी उसे आजकल विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स भी कहा जाता है, और वो इस बुनियादी शिक्षा को वो व्यवसाय परक बनाना चाहते थे। उनका मत ये था कि भारत जैसे गरीब देश में जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ धनोपार्जन भी कर लेना चाहिए, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने एक नई तालीम की शिक्षा की अवधारणा दी, जिसे वर्धा योजना भी कहा जाता है। इस शिक्षा को लाभदायक और अल्पव्ययी करने की दृष्टि से 1936 में उन्होंने भारतीय तालीम संघ की स्थापना भी की थी और नई तालीम की शुरुआत वहीं से हुई। सुन पा रहे हैं ना मुझे? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो महात्मा गांधी जी की जो भारत को देन है उसमें बुनियादी शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है। इसे वर्धा योजना या नई तालीम या बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा के नामों से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई, जिसमें इन सभी उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। इसे राष्ट्रव्यापी व्यावहारिक रूप दिया जाना था और उनके शैक्षिक विचार शिक्षा शास्त्रियों के तत्कालिक विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए पहले उनके विचारों का विरोध भी हुआ। गांधी जी ने यह कहा था कि नई तालीम का विचार भारत के लिए उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ योगदान है। यदि इसको मूर्त रूप दे दिया जाता है तो भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। गांधी जी के जो जीवन पर्यंत सत्य और अन्वेषण के प्रयोग चले और राष्ट्र निर्माण के लिए सक्रिय प्रयोगों के माध्यम से जो लंबे समय तक विचारों का गहन मंथन किया, उसके परिणाम स्वरूप नई तालीम का दर्शन और प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हुआ, और जो केवल भारत के लिए ही नहीं है बल्कि संपूर्ण मानव समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सबसे अच्छी कल्याणकारी जो ये शिक्षा प्रणाली गांधी जी ने दी थी, इसके राष्ट्रीय स्तर पर समुचित प्रयोग नहीं हो पाया। इसके फलस्वरूप आज तक भी यह देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप सार्थक और सही रूप से स्वराज प्राप्त करने में असमर्थ रहा,
ऐसा शिक्षा शास्त्रियों का मानना है। 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। उसके उद्घाटन भाषण में गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन के महत्वपूर्ण जो पहलू थे उन पर प्रकाश डाला और ये जो नई तालीम की शिक्षा पद्धति थी उसके बारे में खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में जो प्रसिद्ध गांधीवादी शिक्षा शास्त्री जैसे विनोबा भावे जी थे, काका कालेलकर जी थे, जाकिर हुसैन जी आदि थे, इन लोगों ने उसमें भाग लिया। और अंतिम दिन जो वर्धा सम्मेलन का अंतिम दिन था उसमें जो प्रस्ताव पारित किए गए वो मुख्यतः ये 3 प्रस्ताव पारित उसमें किए गए कि पहला प्रस्ताव तो ये था कि बच्चों को 7 साल तक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो मातृभाषा होना चाहिए। जो हमारी अभी नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमारी मातृभाषा की बात की गई है और हम उसके पर काम भी कर रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं। लेकिन ये बात गांधी जी ने पहले ही कह दी थी कि जो हमारी शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए। और तीसरी जो बात थी जिस पर सहमति हुई, जो प्रस्ताव पारित हुआ, वो ये था कि इस दौरान दी जाने वाली जो शिक्षा है वो हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य पर केंद्रित होनी चाहिए। अन्य सभी योग्यताओं और गुणों का विकास जहां तक संभव हो बच्चों के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बालक द्वारा चुनी हुई हस्तकला से संबंधित होना चाहिए। इन प्रस्तावों के पारित हो जाने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन कर दिया गया और जिसे इन प्रस्तावों के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने का काम दिया गया। इन प्रस्तावों के आधार पर एक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तैयार की गई जो देश भर में नई तालीम या बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना के नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुई। बुनियादी शिक्षा या नई तालीम या वर्धा योजना, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा आज तक नहीं है जिसे लोग साधारणतया जिससे सहमत हो सकते हो। बुनियादी शिक्षा के वास्तविक मूल तत्व और निश्चित लक्ष्यों के संबंध में बहुत सारे विरोधाभास या गड़बड़ियां भी कह सकते हैं हम, वो बहुत कुछ दिखाई देता है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी। वो उत्पादक कार्य को शिक्षा का केंद्र मानते थे, किंतु वास्तविक प्रयोग में उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के सिद्धांत के भिन्न भिन्न अर्थ हो गए। कुछ शिक्षाविद जो गांधी जी के अनुयायी होने का दावा करते हैं विद्यालयों में प्रयोग योग्य वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन पर जोर देते हैं, जबकि कुछ लोगों का मत यह है कि इसका अर्थ खेल विधि द्वारा शिक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो यही एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित है, यही अनुभवजन्य शिक्षा है। गांधी जी आत्मनिर्भरता को शिक्षा का वास्तविक मापदंड समझते थे। आत्मनिर्भरता से उनका तात्पर्य यह था कि बेसिक स्कूल इस सीमा तक स्वावलंबी हो जाएं कि अध्यापकों का वेतन विद्यालयों में जो बच्चों वस्तुओं का उत्पादन करेंगे उनको बेचकर किया जा सके। हालांकि इसका बहुत विरोध भी हुआ था, बाद में भी विरोध हुआ। इसलिए आरंभ में बुनियादी शिक्षा के समर्थकों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात की आशा करने लगा कि यदि बुनियादी शिक्षा के लिए समुचित वातावरण पैदा किया जाए तो इसका अधिक मात्रा में खर्च निकल आएगा और जो बचा हुआ खर्च होगा यानी कि अवशेष खर्च जो होगा उसे सरकार दे देगी, जिससे बेसिक स्कूल का दक्षतापूर्वक संचालन किया जा सकेगा। किंतु जब अनुभव किए गए तो अनुभवों से ये अनुमान गलत सिद्ध हुए। जो उन्होंने गांधी जी ने नई तालीम की बात की है उसमें जो मुख्य विशेषताएं थी उनमें मुख्य विशेषता जो पाठ्यक्रम की अवधि थी उसको लेकर थी। उन्होंने बुनियादी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसकी अवधि 7 साल की बताई और उन्होंने कहा कि 7 से 14 साल के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी दी जाए। उन्होंने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा के लिए कहा, हिंदी भाषा का अध्ययन बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य हो, ऐसा नई तालीम में कहा गया। नई तालीम में कहा गया कि जो संपूर्ण शिक्षा है उसका संबंध आधारभूत शिक्षा, आधारभूत शिल्प और अनुभवजन्य शिक्षा होना चाहिए। चुने हुए शिल्प को ये शिक्षा देकर एक अच्छा शिल्पी बनाकर छात्रों को स्वावलंबी बनाया जाए और शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को समझ सकें। गांधी जी ने नई तालीम में जो शारीरिक श्रम था उसको बहुत महत्व दिया। वो महत्व इसलिए दिया ताकि सीखे हुए जो शिल्प हैं उसके द्वारा वो अपनी जीविका उपार्जन कर सकें।
शिक्षा बालकों के जीवन, घर, ग्राम तथा ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसाय इनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित हो, यह नई तालीम का लक्ष्य था। बालकों द्वारा बनाई हुई वस्तुएं जिनका प्रयोग किया जा सकता हो, उनको बेचकर विद्यालय का खर्च निकल जाए, और इसलिए बालक और बालिकाओं के लिए उन्होंने एक सामान्य पाठ्यक्रम रखा जाए, यह भी नई तालीम की विशेषता थी। नई तालीम में कहा गया कि छठी और सातवीं कक्षाओं में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान ले सकती हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि 5वीं कक्षा तक तो बालक और बालिकाएं साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन छठी और सातवीं में बालिकाओं को आधार शिल्प, जो आधारभूत शिल्प है, उसके स्थान पर वो गृह विज्ञान ले सकती हैं। उनसे उनका मानना यह था कि जो बालिकाएं हैं वो आगे चल के गृहिणी बनती हैं और देश के उसमें योगदान देती हैं, इसलिए गृह विज्ञान में वो पारंगत होनी चाहिए। और पाठ्यक्रम का जो बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम था, जो नई तालीम का पाठ्यक्रम था, वो वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष हो, ऐसा उन्होंने कहा। और लेकिन एक बात उसमें विशेष रूप से थी कि उस पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा नहीं दी। अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा को ना देने का जो विशेष कारण था वो ये था कि चूंकि बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता और संस्कृति के नजदीक थी, और साथ ही साथ सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से जुड़ी हुई थी, और सीखे हुए आधारभूत शिल्प के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर सकता था। इसलिए ये शिक्षा हमारे जीवन के बुनियाद या आधार से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसका नाम बुनियादी या आधारभूत शिक्षा रखा गया। और अंग्रेजी और धर्म को इससे इसलिए निकाला गया ताकि एक वैमनस्य पैदा ना हो, एक कटुता पैदा ना हो, और एक हीन भावना की ग्रंथि ना आए। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में आधारभूत शिल्पों को रखा, जैसे कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, पुस्तक कला, छपाई कला, मछली पालन, फल और सब्जी की बागवानी। बालिकाओं के लिए उन्होंने गृह विज्ञान और स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षाप्रद हस्तशिल्प, और इसके अलावा मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान, कला, हिंदी, शारीरिक शिक्षा, इन विषयों को रखा। शिक्षण विधि को शिक्षण का वास्तविक कार्य क्रियाओं और अनुभवों पर अनिवार्य रूप से आधारित किया जाए और अनुभवजन्य रखा जाए, ऐसा किया। उनके अनुसार जो शिक्षण विधि थी वो व्यावहारिक होनी चाहिए, अनुभवजन्य होनी चाहिए, तभी वो कामयाब हो सकती है। बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जाए। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना और क्रिया के माध्यम से सीखने पर उन्होंने बल दिया। अनुभव की बात उन्होंने की, बहुत ज्यादा की। उन्होंने कहा कि यदि अनुभवजन्य शिक्षा हम नहीं देंगे तो बालक केवल सैद्धांतिक बातें ही जान पाएंगे। इसको यहां हम इस एक उदाहरण से ले सकते हैं कि जैसे हम किसी को तैराकी की शिक्षा दें और उसको केवल सिद्धांत रूप में पढ़ाएं और व्यावहारिक ज्ञान उसको ना दें और ले जाकर उसे किसी नदी या तालाब या समुद्र में एकदम धकेल कर कहें कि तुम तैरना शुरू कीजिए, तो यदि उसे अनुभव नहीं होगा, केवल सैद्धांतिक ज्ञान उसको होगा, तो वो ठीक से तैर नहीं पाएगा और संभावना इस बात की ज्यादा बनती है कि वो डूब सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षा हो वो कौशल आधारित हो, अनुभव आधारित हो। जैसे टंकण की बात हम करते हैं तो टंकण भी अनुभव से आता है। उन्होंने अनुभव के शिक्षा की बात की। वर्तमान में यदि हम देखें, अगर हम आज के माहौल की बात करें, तो आज मैं देख सकता हूं कि हमारे युवाओं के पास डिग्रियों की भरमार है, बहुत सारी डिग्रियां मिल जाएंगी, लेकिन रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। गांधी जी इस बात को समझते थे, इसलिए गांधी जी ने बहुत साल पहले ही इस समस्या को इंगित कर दिया था और उन्होंने बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत उद्योगों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया था, ताकि बालक किसी न किसी हस्तशिल्प को सीखकर आत्मनिर्भर बन सकें और बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त कर सकें। अब अगर देखें, नई शिक्षा नीति भी आई है। इस शिक्षा नीति में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए और व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया जा रहा है, अब व्यावहारिक शिक्षा पर भी बल दिया जा रहा है। लेकिन गांधी जी ने इस बात को अपनी नई तालीम में ही कह दिया था। गांधी जी बालकों में मानवीय गुणों का विकास करने पर बल देते थे। गांधी जी ने शारीरिक श्रम का सम्मान किया। उनके अनुसार मनुष्य को अपना कार्य अपने आप करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा करने से भेदभाव भी मिटता है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बहुत आवश्यक है। कभी कभी देखने में आता है कि जैसे छोटे काम है, हाथ के काम है, उनको जो अति शिक्षित लोग हैं करते हुए थोड़ा सा झिझकते हैं,
लेकिन गांधी जी ये चाहते थे कि ये भेदभाव मिटे, इसलिए जो काम का आदर करेगा वही उत्पादन कार्य से भी जुड़ सकता है। जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, गांधी जी की जो नई तालीम अनुभवजन्य शिक्षा की बात थी, वो उन्होंने बड़ा सोच समझ के की थी। महात्मा गांधी जी अपने पेशे से अध्यापक तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंश धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण या स्त्री पुरुष के वर्ग भेद से ऊपर उठकर जीवन भर मानव जाति का अध्यापक होने के रूप में निभाया। मनुष्य जीवन में वो सामाजिक और नैतिक गुणों के विशेष आग्रही थे। उनका यह अटूट विश्वास था कि भारत के लोगों के लिए स्वतंत्र और उच्च जीवन निर्माण ये गुण बहुत आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य हैं। जीवन के उत्कर्ष और विचारों की उदात्तता के लिए गांधी जी शिक्षा को विशेष महत्व देते थे। वो शिक्षा को ज्ञान विशेष को सीमित दीवारों तक स्वीकार नहीं कर सकते थे, बल्कि उनका मानना यह था कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करना होना चाहिए। यदि अनुभव नहीं होगा, हमारी शिक्षा अनुभव पर आधारित नहीं होगी, तो जो समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी या आने की संभावना है या जो आती हैं, वो उनको हमारे बालक दूर नहीं कर पाएंगे। हमारे देश के भावी नागरिक जो हैं, जो हमारे देश की बागडोर जिनके हाथों में होगी, उनको समस्याएं आएंगी। इसलिए उन्होंने अनुभव की बात की। शिक्षा के संबंध में उनकी बहुत व्यापक दृष्टि थी। जो अपने जीवन का जो उनका अंतिम दशक था, वो गांधी जी उसमें इस निष्कर्ष पे आए कि यदि मानव उत्थान को किसी भी रूप में गति प्रदान करना है या लाभान्वित करना है, तो पूरे राष्ट्र के शिक्षाविदों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्माणकारी और अनुभवजन्य शिक्षा में विशेष रुचि लेनी होगी। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि गांधी जी भले ही एक समाज सुधारक थे, वो प्रार्थना पुरुष थे, राष्ट्र के सच्चे रहबर भी वो थे, पर वे एक चिंतनशील शिक्षाविद थे। शिक्षा के विशेष ध्यान उन्होंने दिया। वो शिक्षा को तत्व ज्ञान, अध्यात्म, जीवन उत्थान आदि विभिन्न पहलुओं से जोड़कर देखना और परखना चाहते थे। गांधी जी कहते थे कि मैंने अब तक जो कुछ भी हिंदुस्तान को दिया है, उसमें वो शिक्षा योजना और पद्धति अति महत्वपूर्ण है। मैं नहीं मानता कि इससे भी मूल्यवान और उत्तम कुछ और भी हो सकता है या मैं दे सकता हूं। गांधी जी शिक्षा में हमेशा तत्वज्ञान और अनुभवजन्य शिक्षा को विशेष महत्व देते रहे। उनकी दृष्टि में तत्वज्ञान और शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जेम्स शेस नामक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी तत्वज्ञान और शिक्षा की अनिवार्यता, अनन्यता और एकात्मकता को स्वीकार करते हुए एक जगह लिखा है कि तत्वज्ञान चिंतनात्मक है जबकि शिक्षा क्रियात्मक है। यानी कि जो पश्चिमी विद्वान हैं वो भी शिक्षा की क्रियात्मकता पर बल देते हैं, जिसे गांधी जी ने विशेष रूप से कहा है। जेम्स शेस ने यह भी कहा कि जीवन में शिक्षा के महत्व को स्वीकार करने वाले व्यक्ति अन्य व्यक्ति को भी वैसी ही विचारधारा में प्रवाहित करने का प्रयत्न करते हैं। यहां मेरा कहने का आशय यह है, जेम्स शेस को मैंने इसलिए उद्धृत किया कि जो व्यक्ति सीखता है वो केवल अपने लिए नहीं सीखता, वो अपने उन गुणों को संचालित करता है आने वाली पीढ़ी में और जो लोग उसके संपर्क में आते हैं। इसलिए जो अनुभवजन्य शिक्षा कोई व्यक्ति प्राप्त करेगा तो उसे वह दूसरों को भी देगा। गांधी जी के मतानुसार शिक्षा का जो तत्व ज्ञान है वह अधिकतर जीवन तत्व में सम्मिलित है। इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए तत्व संबंधी बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए और कार्य पद्धतियां अपनाई जानी चाहिए थी। शिक्षक तैयार किए जाने चाहिए थे, उनके लक्ष्य और आदर्शों को ध्यान में रखकर उनका मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए था। जो तत्व ज्ञान की हम लोग बात करते हैं वो तत्व ज्ञान सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में व्यक्ति विकास और उसके सुखी जीवन के साथ साथ सामाजिक हित को भी समाविष्ट किया जाना चाहिए। शिक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का मूल्यांकन और शिक्षा की कार्य प्रणाली का जो अमलीकरण है, यानी कि उनको व्यवहार में भी लाना जाना चाहिए। गांधी जी ने शिक्षा में अक्षर ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हुए भी उससे अधिक महत्व शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को दिया है। इस संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण मंतव्य ध्यान में रखने लायक हैं, तो उनमें एक तो 1 सितंबर 1921 को यंग इंडिया समाचार पत्र में उन्होंने नई तालीम की चर्चा करते हुए लिखा है कि अन्य देशों के बारे में कुछ भी सही हो, कम से कम भारत में तो जहां 80% आबादी खेती करने वाली है और दूसरी 10% उद्योगों में काम करने वाली है, शिक्षा को नीरी साहित्यिक बना देने और लड़कों और लड़कियों को
उत्तर जीवन में हाथ के काम के लिए अयोग्य बना देना गुनाह है। तो गांधी जी कहते हैं उसमें कि मेरी राय तो यह है कि चूंकि हमारा अधिकांश समय रोजी कमाने में लगता है, इसलिए हमारे बच्चों को बचपन से ही इस प्रकार के परिश्रम का गौरव सिखाना चाहिए, अनुभव दिलाना चाहिए, ताकि हमारे बालकों की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिससे वो मेहनत का तिरस्कार ना करें और मेहनत से अपने कदम पीछे ना हटाएं। कोई कारण नहीं है क्यों एक किसान का बेटा किसी स्कूल में जाने के बाद खेती मजदूर के रूप में आजकल की तरह निकम्मा बन जाए। यह अफसोस की बात है कि हमारी पाठशालाओं के लड़के शारीरिक श्रम को तिरस्कार की दृष्टि से चाहे ना देखते हों, पर नापसंदगी की नजर से जरूर देखते हैं। ऐसा उन्होंने 1 सितंबर 1921 को यंग इंडिया समाचार पत्र में लिखा। अक्षर ज्ञान की तुलना जो हाथ की शिक्षा है, जो हस्तशिल्प है, जो अनुभवजन्य शिक्षा है, उसको प्राथमिकता देते हुए हरिजन सेवक समाचार पत्र में 15 मार्च का उनका एक आलेख है जिसको मैं पढ़ रहा था। उसमें वो लिखते हैं कि मेरी राय में तो इस देश में जहां लाखों आदमी भूखे मरते हैं, बुद्धिपूर्वक किया जाने वाला श्रम ही सच्ची प्राथमिक शिक्षा का या प्रौढ़ शिक्षा है। इसी में उसमें लेख में वो आगे लिख रहे हैं कि अक्षर ज्ञान हाथ की शिक्षा के बाद आना चाहिए। हाथ से काम करने की क्षमता अनुभव के आधार पर हस्त कौशल ही हो तो वो चीज है, ये वो वस्तु है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है, उसे मनुष्यत्व सिखाती है। लिखना पढ़ना जाने बिना मनुष्य का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो एक पशु के समान ही हो जाते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अक्षर ज्ञान से जीवन का सौंदर्य बढ़ जाता है, लेकिन यह अलग बात है कि उसके बिना मनुष्य का नैतिक, शारीरिक और आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता। गांधी जी की शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि या मस्तिष्क के विकास तक सीमित नहीं मानते थे। वो नई तालीम में उसे एक महत्वपूर्ण साधना पद्धति के रूप में वो चलाना चाहते थे, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास के साथ साथ उसके आध्यात्मिक उत्कर्ष में भी सहायक हो। गांधी जी की दृष्टि में शरीर के साथ साथ आत्मा का विकास भी शिक्षण का एक अविभाज्य अंग होना चाहिए था। इसलिए अक्षर ज्ञान से आगे बढ़कर उन्होंने शिक्षा के लिए आवश्यक माना, उन्होंने अनुभवों को शिक्षा के लिए आवश्यक माना। अनुभव करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने नई तालीम के जो शिक्षा सिद्धांत था उसमें जोर दिया। जैसा कि हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, जब शिक्षा की परिभाषा के बारे में हम बात करने में गांधी जी ने क्या कहा, तो उनका ये शिक्षा की परिभाषा हमको याद आती है। वो कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक की या प्रौढ़ की शरीर, मन और आत्मा की उत्तम क्षमताओं को उद्घाटित किया जाए और बाहर प्रकाश में लाया जाए। अक्षर ज्ञान ना तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है और ना ही उसका आरंभ, वो तो मनुष्य की शिक्षा के कई साधनों में से केवल एक साधन है। अक्षर ज्ञान अपने आप में शिक्षा नहीं है। इसलिए मैं बच्चे की शिक्षा का श्री गणेश उसे कोई अनुभव के आधार पर उपयोगी दस्तकारी कर सिखाकर और जिस क्षण से वो अपनी शिक्षा का आरंभ करे उसी क्षण से उसे उत्पादन के योग्य बनाकर करूंगा। मेरा मत है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव होगा। हरिजन समाचार पत्र में उन्होंने इस बात को कहते हुए स्पष्ट कर दिया कि हमारी जो शिक्षा है अगर वो अनुभवजन्य नहीं होगी, एक्सपीरियंस लर्निंग बेस्ड नहीं होगी, तो वो शिक्षा बेकार होगी। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य या नई तालीम का उद्देश्य दस्तकारी के माध्यम से बालकों का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है। चाहे कोई भी पद्धति हो जो शैक्षणिक दृष्टि से सही हो, जो अच्छी तरह चलाई जा सके, उससे आर्थिक दृष्टि से भी उपयुक्त होना चाहिए। जो आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध होगी तो तभी वो उपयोगी हो सकेगी। गांधी जी एक व्यवहारवान व्यक्ति थे। अन्य की तरह उन्होंने भी अपने तत्व ज्ञान को आचार व्यवहार और अनुकरणीय बनाया। शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने शरीर की, मन की और आत्मा की बात की कि ये शुद्ध होने चाहिए। बालक और मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा में जो उत्तम अंश हो उसके विकास को प्रस्तुत करने की उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमको स्त्री पुरुषों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए बल्कि उन्हें अनुभव कराना चाहिए। शिक्षा को शिल्प केंद्रित जो उन्होंने करने के ऊपर जोर दिया है, जो हाथ की दस्तकारी पर जोर दिया है, जो परिश्रम की बात उन्होंने कही है,
जो श्रम के महत्व की बात उन्होंने कही है उसको केंद्रित करके अनुभव जन्य अधिगम यानी कि एक्सपीरियंस लर्निंग के माध्यम से गांधी जी बच्चों को जो काम सिखाना चाहते थे वो गांधी जी ने शिक्षण के क्षेत्र में क्रियाविधि पर बहुत जोर देते हुए उन्होंने उसको लागू करने की बात की। उनका विचार था कि काम द्वारा सीखना और सिखाना और आत्म अनुभवों के द्वारा सिखाना एक बहुत ही प्रभावशाली शिक्षण है। उनका मानना था कि शिक्षण केवल केंद्रीय बिंदु होना चाहिए और अन्य विषय शिल्प के अनुभव के साथ साथ संबंधित होने चाहिए। गांधी जी ने अपने वक्तव्यों में प्रश्न विधि की उपयोगिता को भी स्वीकार किया है, लेकिन वो समस्त शिक्षा को यही चाहते थे कि वो मातृभाषा के माध्यम से दी जाए और उसमें अनुभवों की अधिकता हो। अनुभवों के आधार पर सीखने पर ही शिक्षा स्थायी हो सकती है और वो हमको आत्मनिर्भर नागरिक बनाती है, इससे देश का विकास होता है। अनुभवजन्य शिक्षा और नई तालीम ये दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। अनुभव के आधार पर शिक्षा दी जाए ये नई तालीम का एक मुख्य सिद्धांत था और वो चाहते थे कि इस नई तालीम में अनुभव के आधार पर शिक्षा दी जाए और हस्तशिल्पों का प्रयोग किया जाए। वो भारतीय शिक्षा का जो मूलभूत उद्देश्य था सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सामाजिक उन्नयन, वो उस पर ध्यान देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अनुभवजन्य शिक्षा को शिक्षा में प्रयुक्त करने पर बल दिया। मैं समझता हूं कि एक्सपीरियंस लर्निंग और नई तालीम के ऊपर आज मुझे इतना कहना ही पर्याप्त होगा। आपने मुझे अपने इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में बुलाया, मैं माननीय गंगादास जी का बहुत आभारी हूं। मैं आभारी हूं अपने छोटे भाई संजय देशवाल जी का कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों सब लोगों के बीच आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू।